परमेश्वर आपको आशीष दे। आज शाम के वक्त थोड़ी देर परमेश्वर का वचन हम देखेंगे and we'll meditate upon some of the things so that that will bring glory and honor to our living God. The subject is saturation Bible study. It comes under Bible study method. Okay, Bible study method. और बाइबल स्टडी मेथड जब हम कहते हैं तो बाइबल स्टडी मेथड में हम पढ़ते हैं वेराइटी ऑफ बाइबल स्टडी. Okay, just to find out how we can study the Bible, how we can meditate often, how we can get a message from it, and how we can share the word of God. जैसे आपके बीच में जैकब दीप ने उन्होंने बाइबल केरूसो ये जो नामक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया, तो मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, केरूसो मीन्स इन ग्रीक प्रीचिंग और प्रोक्लेमिंग. So in order to proclaim the word of God, you have to have the knowledge, the tactics, or in other words, technique to divide the scripture. And let's read one scripture, Joshua chapter number 1 verse 8. Joshua 1:8 सेठारे लिखा जाए, what it says that God is telling to Joshua to meditate the law of the Lord day and night. परमेश्वर यीशु को क्या कह रहा है कि रात दिन वो व्यवस्था को मनन करने के लिए. तो मेरे प्रियो, आज आप हाथ में हैं. यदि परमेश्वर का वचन हमें प्रोक्लेम करना, केरूसो करना है, यानी कि प्रीच करना है या टीचिंग करना है और इवांजेलिज्म करना है, तो परमेश्वर का वचन यदि बांटना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसको अध्ययन करना है, मनन करना है. We need to meditate the scripture. We must meditate the word of God. So as God said to Joshua, meditate day and night. मेरी व्यवस्था को क्या करो? रात दिन. ये व्यवस्था क्या है? What is that? The law. That is scripture. That's what we see. Jesus said on the way to Emmaus. Emmaus के पथ पर यीशु मसीह ने चलों को क्या कहा? मेरे बारे में कहाँ लिखा गया? व्यवस्था में लिखा गया. And it contains in the scripture. It is written about me in the scripture. That's what we read. ऐसे हम पढ़ते. यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हो गए उस समय उन्होंने दर्शन दिया चलों को और कहा, जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे इमाम के पथ पर, तो उन्होंने कहा मेरे बारे में ऑलरेडी लिखा गया है. तो fulfillment of the scripture where we see that is in the life of Jesus Christ. So we have that scripture, written word of God, living word of God, that is Jesus Christ is with us. Now to understand that one, we need to have the study. We need to study the word of God. Teach you this evening among you saturation Bible study. This is one of the method among variety or different method of the Bible study. Okay, before that, we read one scripture, 2 Timothy 3:16. You know it, that we are called to divide the scripture rightly. आमे जिसु ख्रीष्टन को ठारे परमेश्वर मान को अहम करि छंती कि आमे ताको सम्मुखरे तांकर विश्वास हेबा जोगु तांकर संतान हेबा जोगु आमे से वाक्य को केमती करबा rightly divide, means rightly interpreting the scripture and bringing the meaning and proclaiming. That's what we need to do. You know it for what? For reproof, for correction, for profit, for instruction, for many things. So the word of God is given to us in order to proclaim, in order to teach, so that people will have benefit in their life. So this morning, this evening, as we begin our class, let me talk something which is very much essential in our Christian life. Our Christian life रे बहुत essential, महत्वपूर्ण जो विषय हमें जानना निहाती जरूरी. I don't know about your way how you do it, but let me encourage this evening that let's see certain thing which will be very helpful for your Christian life if you are planning to study the Bible. You are young. Maybe you have studied so many times. I don't know how many times you have studied the Bible. Maybe you have studied one time. Maybe you have studied 2 times, 3 times, 4 times. How many times you cover the Bible?
आपने कितने बार बाइबल पढ़ चुके हैं मुझे पता नहीं, जेनेसिस रेवलेशन आदि पुस्तकहरू प्रकाशित वाक्य पर्यंत केते थर आपण माने पढिछन्ति मु जानिनी, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच विल हेल्प यू व्हेन यू स्टडी द स्क्रिप्चर. सो बाइबल स्टडी मेथड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू. बाइबल स्टडी मेथड, वी हैव वैरायटी. व्हाट and how we can study the Bible? You want to become a student of the Bible? You must develop hearing. केवल सुनना नहीं है, listening. See in English you can see hearing to listening. केवल simply listen नहीं करना है. We have to pay attention if we are the student of the Bible. Not simply learning or reading. Okay, not simply reading. केवल ऐसे ही पढ़ना नहीं, बल्कि अध्ययन करना. अध्ययन करना और पढ़ने में बहुत अंतर है. ऐसे सुनना है और deeply listening, that is different. So we need to listen, we need to study and not simply thinking. Okay, our thinking will not work out, but we have to meditate. कोई भी बाइबल वचन आप ले रहे हैं, if you are taking any scripture, you should not simply think about, you should meditate. Meditate, meditate. Meditation, the meaning meditation is, meditation means you are just like in the Greek meaning, original meaning, meditation means as a cow. एक गाय जब घास चरने के बाद आके सोती है तो वो उगाली करती है, वो निकाल कर फिर पुनः उसको खाती है, तब उसका जो रस, उसका जो विटामिन, उसका जो पूरा वो जो चीज उसको मिलना है वो मिलता है. उस तरह परमेश्वर का वचन को ध्यान करना है, केवल सोचना नहीं है, ध्यान करना. So that's meditation. So we need to have listening, we should have study, we should have meditation, and not simply taking Bible as a book, but word of scripture. परमेश्वर का वचन ऐसे लेना है, वो है बाइबल अध्ययन का एक स्टेप. कई चीज हमें होना जरूरी है बाइबल पढ़ने से पहले, वो बात कर रहा हूँ. Then prayer. Prayer is most essential. We should pray and talk to God. What God wants to speak to us. परमेश्वर हमें क्या बोलने जा रहे हैं उसके बारे में सोचना है. परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे सिंपली रीडिंग नहीं करना है, सिंपली स्टडी नहीं करना है. परमेश्वर में प्रार्थना करके उसको अध्ययन करना है. उसके बाद आराधना. वचन जब हम पढ़ते हैं तो आराधना करना, परमेश्वर को आराधना करना. व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप इज ऑल अबाउट you are living, how you live, how you spend your time. It is not only performing in the stage. या कोई गाना गाना है, अच्छा गाना गाना है, ताली बजाना, डांस करना है, या कोई ऐसे करना है. मुझे अच्छा लगा बहन भाग्यश्री ने अच्छा गाना गाया हिंदी में. She has very good tune and this is very good voice. Good, praise the Lord, and it should be useful. But what I'm saying here, see, we should become a good worshipper of the Lord. So practically हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि we are the body of Christ in the temple of Holy Spirit. शायद मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, but I don't know if I can make so simple so you can understand. So what we say, listening, meditating, studying, and taking Bible scripture, praying, becoming worshiper, and get associated with godly people. जवान लोग, जितने भी लोग परमेश्वर का वचन अध्ययन करते, परमेश्वर के दास दासियों के साथ आपके संगति होना चाहिए. तब वो लोग जो बोल रहे हैं, what they say, that will be a good meaning to you, and that will bring glory and honor to you. नहीं तो उनका एडवाइस नहीं लेना, उनके बात सुनना नहीं, then you cannot become a good servant of God. You cannot say that I am a very good Christian if you are not able to obey others' teaching. So get associated with the godly people. That is very important. Associate मतलब उनके साथ होना. Analyze the thing, what is right and wrong. जो right है या wrong है उसको analyze करना, सच में कैसा है. एक अच्छा बाइबल विद्यार्थी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. एक अच्छा बाइबल स्टूडेंट बनने के लिए स्टेप चाहिए. और hold on to the right doctrine. आजकल वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अनेक false teaching चल रहा है कई जगह पर. There are so many places you see people, they don't know how to worship God. They interpret Bible differently. They don't know how to take the word of God in their life, and that is very dangerous. And in the last day, it will happen as such.
So in the Bible study method, what I would like you to understand that let us understand scripture rightly, right doctrine होना चाहिए, then get training according to the word of God. परमेश्वर का वचन में कैसे ट्रेनिंग होना, हमें righteous training we should have, because that's what all scripture is given to us for reproof, for correction, for benefit, for teaching. Why it is given? For us. तो अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, बाइबल स्टूडेंट बनने के लिए, ये जो स्टेप, ये बेसिस है. दिस इज व्हाट आई से, बेसिस टू सैचुरेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो मेनी थिंग टू. तो व्हाट वी नीड एक्चुअली फॉर बाइबल स्टडी? बाइबल स्टडी वी नीड बाइबल, राइट? वी शुड हैव बाइबल. आई डोंट नो वेदर यू हैव बाइबल और नॉट. आपके पास बाइबल है या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाइबल होना है, कोई ना कोई वर्जन होना चाहिए, वेदर इट इज एनकेजेवी और केजेवी और आरएसवी और ईएसवी or NIV or good news, but we should have a good Bible that is version. Simple Bible nahi hai, version. Okay, version. Then we should have a notebook. Whenever we read, we should be able to write certain thing what God speak to us. जो परमेश्वर हमें बातचीत कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसको लिखने के लिए हमारे पास कॉपी होना चाहिए, नोट कॉपी. Then desire, interest, willingness to study the Bible. कई लोग आलसी करते नहीं, बाइबल एक पन्ना पढ़ लिया, उसके बाद बोले मुझे बोरिंग लग रहा है, कैन नॉट स्टडी बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो वी शुड हैव डिजायर और विलिंगनेस टू स्टडी. गिव टाइम. Without giving time, we won't be able to study the word of God. We should invest the time. We should not simply waste the time, because if you give time, then only you will be able to understand the scripture. So to become good student of the Bible, in studying Bible, or in the Bible study method, you want to apply, you want to know the scripture, you want to proclaim it. These are the things required. Okay, we make so many excuses, by the way, when we come to study. मेरे पास time नहीं, I'm too busy, I cannot spend time. Then we say, oh, I am not properly trained, I don't know Greek, Hebrew, grammar, ये सब मुझे मालूम नहीं है, मैं कभी बाइबल कॉलेज गया नहीं, कैसे अध्ययन करूंगा? वो बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ाई किए हैं, एमटीएच किए, एमडी किए हैं, ये लोग हैं, मैं पढ़ूंगा तो क्या डिफरेंस होगा, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं, मुझे समझ नहीं आता. ऐसे एक्सक्यूज करते हैं. We make so many excuses. Then technique, I don't know how to do Bible study, मुझे मालूम नहीं है, इसका टेक्निक मालूम नहीं, ये सब कहते हैं. टाइम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है मेरे पास टेक्निक नहीं है, ऐसे एक्सक्यूज करते हैं हमारे बाइबल स्टडी के. और बाय द वे we neglect, but we have so many tools for Bible study. To study Bible पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे औजार है आजकल. ठीक है, डिफरेंट वर्जन है. जैसे मैंने बता रहा था, केजेवी बाइबल में थोड़ा सा वर्डिंग अलग होगा, केजेवी, एनकेजेवी, एनएसबी, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, आरएसवी बाइबल, सो मेनी वर्जन है. बाइबल सोसाइटी है, हिंदी बाइबल, मछली बाइबल बोलते हैं, हिंदी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और हिंदी में भी अलग अलग वर्जन है. सो वी हैव डिफरेंट वर्जन. आई डोंट नो व्हाट वर्जन यू फॉलो. देन बाइबल डिक्शनरी है. शायद आप लोग कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, लेकिन बाइबल डिक्शनरी है. यू कैन डाउनलोड इन योर मोबाइल. बाइबल डिक्शनरी इज देयर. You can find out any difficult meaning. कोई भी difficult meaning है, उसको ढूंढना है तो बाइबल डिक्शनरी में मिलेगा. Then we have commentary or encyclopedia. Here encyclopedia. Okay, next one is commentary. So concordance. So many things are there. So encyclopedia में इसका विवरण दिया गया, बहुत सारे मीनिंग है. Then concordance में reference. Concordance बोलते हैं, वो भी एक tools बाइबल स्टडी के लिए. There you get lot. For example, we are talking about faith. Faith के बारे में बात कर रहे हैं, तो फेथ के जितने भी रेफरेंस है वो कंकॉर्डेंस में मिलेगा. टॉपिक एंड कंकॉर्डेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेन रेफरेंस बाइबल. ओके, दिस इज डिफरेंट. लेकिन कंकॉर्डेंस में क्या होता है? कंकॉर्डेंस में टेबल में अलग अलग टॉपिक देके फिर फुल रेफरेंस देते हैं. एनसाइक्लोपीडिया में इलैबोरेट मीनिंग, डिक्शनरी में प्रिसाइज मीनिंग है. देन वी हैव क्रॉस रेफरेंस. ऑफ कोर्स आपके पास रेफरेंस बाइबल होगा, हो सकता है, आई डोंट नो. यू हैव cross reference Bible, that also help us to study. That is one of the tools. Then commentary में ज्यादा नहीं जाना. We have so many commentary like you see while people play cricket, जब क्रिकेट खेलते तो कमेंट्री देते हैं, कमेंट्री. ऐसे बाइबल स्टडी के लिए बहुत सारे लोग कमेंट्री लिखा है, जैसे जॉन कैल्विन कमेंट्री, मैथ्यू हेनरी कमेंट्री, अलग अलग परमेश्वर के दास लोगों ने कमेंट्री लिखा है. लेकिन कमेंट्री के अंदर आप चले जाएंगे तो अनेक सारे
बहुत सारे मैसेज को देखेंगे, अनेक लोगों के इलैबोरेटेड मीनिंग, बट दैट विल नॉट हेल्प यू बिकॉज यू आर सिंपली कॉपिंग, दूसरों का कॉपी नकल करेंगे. That will not help you to bring out a good message in the Lord. But commentary is helpful for studying the Bible. You can analyze it, you can understand. ठीक है? So we have version, dictionary, encyclopedia, concordance, cross-reference, commentary. Then we have related books. For example, Bible पर आधारित अनेक किताबों को हम देखते हैं जो लेखक लोगों ने लिखे, बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोगों ने लिखे हैं, वो सब भी सहायक बन गए. ओके, so we have tools. औजार है हमारे पास, चीजें, जिस किताबें हैं, उनके सहायता से भी हम बाइबल अध्ययन कर सकते हैं. बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली, whenever you study, जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं, you should have quiet time. Quiet time means शांत में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, समय बिताना. What is quiet time? You have quiet time in your life? Yes, if I ask you, do you pray? You say, yes, I pray. But let me tell you, आप लोग प्रार्थना तो करते, कैसे करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? कई लोगों के पास पर्सनल टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं प्रार्थना करने, फुल बिजी इन द मिनिस्ट्री, आई एम बिजी, oh I have so many work, that we say. But quiet time is one of the requirement that will help you in your Bible study. यदि आप बाइबल विद्यार्थी, अच्छा बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्वाइट टाइम मतलब एक पर्सनल टाइम जो है परमेश्वर के समय बिताते हैं, उसमें क्या करते हैं आप? यू स्पीक टू गॉड. वन थिंग इज यू नीड टू प्रे टू गॉड. ओके, यू प्रे टू गॉड एंड देन यू हियर फ्रॉम हिम. आपने कभी परमेश्वर से कुछ सुना है? हैव यू एवर हर्ड समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड? Maybe you are attending so many conference meetings and all, but let me ask you this evening, you need to speak to God also and hear, because God has given 2 ears and 1 mouth. Okay, we need to listen from him. Then receive. What you receive the promise of God, blessings of God. God says that, yes, my daughter or my son, this is what I am going to do. So in your quiet time, when you take a passage of scripture, one passage or one verse or one chapter or one book, and you study, जब आप अध्ययन करते हैं, उस समय परमेश्वर आपको क्या कह रहे हैं, वो रिसीव करना है. So you need to receive. Then examine. Self-examination is very much important in studying God's word. परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से दूसरों के लिए ही केवल नहीं है. लोग क्या करते हैं, मुझे बाइबल मालूम है, दूसरों को प्रचार करना, बस वही काम है उनका. भाई, पहले अपना जीवन क्या है उसके बारे में भी सोचना है. So that is very important in the Bible study. Okay, so self-examination. So why we need to have quiet time? हमें क्यों ये quiet time चाहिए? बाइबल में अनेक सारे उदाहरण को देखते हैं जो परमेश्वर के दास लोगों ने, उन्होंने टाइम निकाल कर परमेश्वर के साथ समीप में और समय बिताया है. मूसा, अब्राहम, दाऊद, दानियल, पॉल, ये जो हमने नोट किया, बहुत सारे लोग. इसके अलावा आप देख सकते हैं रूथ, एस्टर, they had the personal connection with the Lord. They were, you know, Daniel was praying how many times? 3 times in a day. दाऊद कितने बार प्रार्थना करता था? भजन संहिता के लिए 7 बार. He was a king. How he was praying? You think about. Paul had personal connection with the Lord. That's why he read many things. अब्राहम is called the friend of God. सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, क्या बोले? You are the darling of God. परमेश्वर ने खुद कहा, You are Jedediah, मतलब आप मेरा डार्लिंग, अति प्रिय है. दाऊद को परमेश्वर ने क्या बोले? You are my heart, God's own heart. So everyone, they got different title. Why? You know, they were very close. They were very close to God. आप लोगों को, मुझे हमेशा हर एक को क्या करना है? प्रभु के साथ हमारा समय बिताना जरूरी है. That is very, very important. Otherwise, we cannot say that I am studying God's word and it is meaningful to me and I understand. No, we should have. Okay, next, we should have God's direction in life. परमेश्वर का मार्गदर्शन. We should have God's direction. Direction मतलब मार्गदर्शन होना चाहिए. Examine करना है. Then it also helps our attention away from the world. क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, तो what is happening, you know, our concentration with the people. We always concentrate. But if we have quiet time, you have personal time with the Lord, so you can be away from the
वर्ल्डली थिंग and think about the godly thing, क्योंकि आपका दोस्ती किसके साथ है? परमेश्वर के साथ. So it's very important in your Bible study. Okay, then for the spirituality, क्यों हम क्वाइट टाइम लेते हैं? इसका बहुत सारे उत्तर है. ये तो एक काम नहीं लिखा है, लेकिन आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते. So we need quiet time. Quiet time is one of the essential thing in our Bible study. So I am talking about Bible study method. बाइबल को कैसे हम अच्छा अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ. शायद आप लोग समझ रहे होंगे. तो क्वाइट टाइम चाहिए. ओके, देन बाइबल चाहिए, नोटबुक चाहिए, टूल्स है, मैंने बताया डिफरेंट वर्जन है. दोस आर थिंग आई विल रिपीट इट, बट let me tell you, hopefully you are understanding me. So what are the thing I say? Then you meditate the scripture. You need to meditate often the scripture. परमेश्वर का वचन का भाग आपको लेके प्रार्थना के साथ मेडिटेशन करना जरूरी है. You meditate on the read scripture. जब आप क्वाइट टाइम में एक पोर्शन लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने जॉन चैप्टर 3 लिए या जॉन चैप्टर 4 लिए. Let's say John chapter 4 you took, there is Samaritan woman, सामरी औरत के बारे में लिखा गया. सामरी औरत के बारे में आपने पढ़ रहे, मेडिटेशन कर रहे, तो उसके बाद नोट डाउन द स्पिरिचुअल ट्रूथ, व्हाट गॉड स्पीक टू यू. बाइबल पढ़ते तो प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने क्या कहा उसको लिखना है. Then find and gather the spiritual truth and try to discern, उसको एग्जामिन करना, सच में परमेश्वर मेरे लिए क्या बोल रहे हैं. What is he speaking to me? Okay, that is very important. So in your quiet time, read the scripture, meditate often, note down the spiritual truth. These are the basic steps. Let's go forward. So as I said, my topic is, I was telling you, saturation Bible study. So just I want to say, what is saturation Bible study? So saturation Bible study is one of the methods of Bible study by which one can study Bible, that is word of God, for his or her own life and ministry. ये एक method है. There are a variety of method. Okay, I will tell you very soon, but I don't know if I can cover 7 to 8 few things we can cover. 20 minutes रहेगा. Then we have so many things to cover. Okay, saturation Bible study is one of the Bible study method. And before that, I already said what is the basis. I already said you should be able to listen to God, study God's word, and meditate often, not taking Bible as simply a mere word but scripture. So introduction, saturation Bible study का introduction ये, this is one of the method. Okay, एक method है, बहुत सारे method है, उनमें से एक ही method है saturation Bible study. इससे पहले कई सारे method को मैं आपके सामने रखूंगा. Before we learn about this method, let us consider some of the method. Variety, कैसे हम Bible study करते हैं, बहुत सारे method है. Okay, so what I want to say, Bible study अलग-अलग है. एक बाइबल स्टडी मेथड में बताने जा रहा हूं, वो है सैचुरेशन बाइबल स्टडी. उससे पहले क्या क्या होना चाहिए मैंने बताया. सो लेट्स गेट इनटू व्हाट इज सैचुरेशन बाइबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइबल स्टडी. ओके, एक बाइबल स्टडी हम कंसंट्रेशन करेंगे, वो है सैचुरेशन बाइबल स्टडी. बट उससे पहले, how many types of Bible study are there? At least I will tell you, there are variety, but few I have listed and I will explain to you. Okay, let's get into it. So let's get into what are the types of Bible study. So different types of Bible study are there. अलग-अलग Bible study method है. So there are variety of Bible study here. You can note it. See, number one is synthetic Bible study. Synthetic Bible study. So I will get into it. What is synthetic Bible study? Synthetic Bible study. Some problem is there. Okay, synthetic Bible study. So in synthetic Bible study, you see, there are things we put together, different concept को हम ले आते हैं. Synthetic cloth आपने देखा है, उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है. क्या करते हैं, धोने के बाद ऐसे झाड़ना है. Just you shake and no need of pressing.
And here you see the picture, this picture about rope. And you can talk about the woolen thing, you know, ऊन लेके आप स्वेटर बुनते हैं. तो अलग अलग कंसेप्ट को इकट्ठा हम डाल के, ये when you weave it together, then you can make a sweater. So in that same way, when you put all woolen together, you can make sweater. In the same way, different concept if you put together, you can make a whole theme. एक theme बना सकते हैं. So synthetic study is one of the study. वो study ये है कि उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो थॉट है, अलग अलग थॉट है, उसको लेके एक जगह पर डाल के एक पर्टिकुलर थीम के अनुसार हम जो बात करते हैं उसको कहते हैं सिंथेटिक स्टडी. फॉर एग्जांपल एक पैसेज आपने लिया है, वो पैसेज को कई कंसेप्ट आप ड्रा करके वो कंसेप्ट डाल के फिर एक पर्टिकुलर थीम पर बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं सिंथेटिक स्टडी. व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इट विल बी क्लियर, डोंट वरी, अदरवाइज यू कैन आस्क मी. मुझे 1 मिनट देना है, ठीक है? कुछ नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल बाइबल स्टडी. एनालिटिकल बाइबल स्टडी. Analytical Bible study, what you do, you analyze the thing. You analyze the thing. When you take a passage or a verse, देखो हम बाइबल स्टडी जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, इधर एक वर्स लेते हैं या एक पैसेज लेते हैं या एक चैप्टर लेते हैं या एक बुक लेते हैं और हम पढ़ते हैं, तो उसमें एनालाइज करते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, एक लेबोरेटरी. फॉर एग्जाम्पल किसी को कोविड हो गया, कैसे आपको मालूम है कोविड हो गया? आप लेबोरेटरी में जाएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे या अलग टेस्ट, एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे, तब पता चलेगा कि इसको कोविड है. नाउ टू फाइंड आउट द रिजल्ट, टू नो अबाउट इट, टू नो व्हाट इज द थिंग इन द पैसेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डू व्हेन यू रीड द बाइबल. सो यू अंडरस्टैंड हु इज द रीडर, किसने लिखा है. यू नोटिस द रीडर. रीडर नोटिसेस, जो पढ़ने वाला वो असल राइटर कौन है उसके बारे में दिखता है. फिर कौन सा टेंस में लिखा है, कौन सा मूड में लिखा है. टेंस हमारा फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में. जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो क्या है, इमीडिएट फ्यूचर है, लेकिन आने वाला हूं प्रेजेंट टेंस में है, आ रहा हूं. जैसे इन द ग्रीक इट इज लाइक दैट. But when you study, you should know in which tense. Mood. English में बहुत सारे मूड है, ठीक है? इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, सब्जेक्टिव, डिफरेंट मूड है. तो ये ग्रामेटिकल फॉर्म कौन सी है वो हमें देखना है. फिर पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, कितने लोग हैं इसमें. हाँ, देन नंबर, सिंगुलर है, प्लूरल है, किसको बोला गया. फॉर एग्जाम्पल जीसस इज स्पीकिंग टू द डिसाइपल, यीशु मसीह चेलों को बात कर रहे हैं. अनेक लोग हैं, एक नहीं है, अनेक लोग हैं. कितने लोग हैं वो हमें देखना है. देन इन द ग्रामेटिकल व्हाट यू सी, नंबर, ओके, सिंगुलर, आई एम टेलिंग यू, और दैट सेकंड पर्सन इज टेलिंग टू सम थर्ड पर्सन. सो सच थिंग आर देयर. ऐसी बातों को हम देखते हैं बाइबल में. जब बाइबल एनालिटिकली हम एनालाइज करते हैं तो ग्रामेटिकल बातों को भी ध्यान देते हैं. देन वर्ब, थिला अछि जेंति ओडिया रे, हेउछि, हेउथिबो, कहउछंती. lot of thing that is ongoing thing that is given, that is what we need to analyze in the scripture, in the even in the sentence. That is what we call analytical Bible study. We analyze carefully, complete, and it provides what? It provides careful, complete, and precise grasp of its teaching. जो शिक्षा वो वचन के भाग में देना चाह रहे वो रीडर, जो ऑथर लिखा. फॉर एग्जाम्पल प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स. बुक ऑफ एक्ट्स ने लूक ने लिखा है, लूकर ने लिखा है. He wrote. So why he wrote as a history? उन्होंने लिखा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य किस तरह हुआ पहली शताब्दी के कलीसिया में, वो बात को हम नोटिस करते वहां. तो उसका जो लैंग्वेज स्टाइल अलग है, हिस्टोरिकल फॉर्म में लिखा है.
So that's what we analyze. So first thing I say, what study? Synthetic study. अलग अलग चीजों को लेके putting together. Second was analytical. Number third, devotional study. आप शायद ये ज्यादा familiar है. Devotional study, take a passage of the Bible, then prayerfully what you do, you meditate upon, and what Holy Spirit speak to you, then you apply in your personal life. Practically you want to see possible way, and you can see and measure it. तो डिवोशनल स्टडी में हम क्या करते हैं? डिवोशनल स्टडी में कोई भी वचन का भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के साथ मनन के साथ हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उसको हम अपने जीवन में लागू करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप में उसको पॉसिबली हम देखने के लिए, और क्या हुआ उसको जानने के लिए वो जो अप्लाई करते हैं और वही बात को लेके दूसरों को बताते हैं, उसको कहते हैं डिवोशनल स्टडी. व्हेयरएज एनालिटिकल स्टडी में वो अलग है. वो पैसेज में कौन सा कंटेक्स्ट में बोला गया, कौन कौन वहां इन्वॉल्व थे, वो सब बयान आप कर रहे हैं, उसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडी. उसमें कौन सा टेंस में लिखा गया, कौन से मूड में लिखा गया, और वो पैसेज को आप मैसेज बना रहे हैं when you study the word of God. In synthetic study में अलग अलग कंसेप्ट डालते हैं, whereas in devotional study what the Spirit of God says, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके आप सुन के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करने के लिए जो कोशिश करते हैं उसको कहते हैं डिवोशनल स्टडी. Okay, next we'll move to next one, that is called biographical or character study. बाइबल में अनेक सारे कैरेक्टर है. अब्राहम है, मोसेस है, नोआ है, दानियल है, जॉब है, पॉल है, एस्टर है, रूथ है. So many characters are there. So when you are studying Bible, you are taking a particular character and trying to understand him or her. For example, let's say you study about Abraham. अब्राहम के बारे में आपने स्टडी किया. अब्राहम के जीवन में क्या पॉजिटिव बात हमें मिलता है उसको आप, so you take positive quality of a character. Study and avoid the negative. लेकिन यदि मैं आपको पूछूंगा, if I ask you, for example, what are the negative things happen in the life of Abraham, you will notice surely. Oh, Abraham introduced his wife as sister. अपने बीवी को उन्होंने क्या कहा कि वो मेरी बहन, ऐसे कहकर इंट्रोड्यूस किया, और वो एक वीकनेस है. आप बोलेंगे नहीं, उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने कहा वो चिड़ियों को क्या करना है, सैक्रिफाइस करना, लेकिन उन्होंने ऐसे छोड़ दिया. इसी कारण वो इस्राएली लोग 400 साल कहाँ रहे? मिस्र देश में गुलामी हुए. इस परमेश्वर ने क्या कहा? Because of this mistake, your children, your descendants will be in the Egypt for 400 years. 400 साल वो लोग कहाँ रहेंगे? बंडेज में रहे. वही हुआ, अब्राहम ने मिस्टेक किया. So we are not going to study the negative one, positive one in the Bible character study. So वो सीख जो मिलता है आप बाइबल अध्ययन करने के समय, उसको जब आप दूसरों को तक पहुंचाते हैं उसको कहते हैं बायोग्राफिकल और कैरेक्टर स्टडी. ठीक है, हमारे मिशनरी बायोग्राफी भी है बहुत सारे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइबल कैरेक्टर्स. ओके, दिस इज बायोग्राफिकल स्टडी में वो ध्यान देते हैं. नेक्स्ट we'll get into theological study. Theological study ये ज्यादा डॉक्ट्रिनल बेस पर है. थियोलॉजी मैटर्स. पवित्र आत्मा के बारे में आप क्या विश्वास करते हैं? कई क्रिश्चियन अलग तरह विश्वास करते हैं. कोई तो बोलते हैं ये आत्मा है, कोई तो कहते हैं ये शक्ति है, कोई कहते हैं व्यक्ति है, कोई कहते हैं पावर है, कोई कहते हैं पर्सन है. There are a lot of confusion. So what Bible says? So when you take a passage, जब कभी भी आप पैसेज लेते हैं, so what are you doing? You are trying to find out what actually Bible teaches. वो है उस स्टडी में ध्यान देते, तो डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट में आप देख रहे हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाइबल स्टडी में अलग अलग तरह की बाइबल स्टडी है, अलग अलग तरह की बाइबल स्टडी. ये जो थियोलॉजिकल स्टडी है, मोस्ट ऑफ द थियोलॉजिकल स्टूडेंट, दोज हु स्टडी इन द बाइबल कॉलेज एंड ऑल, दे गिव द डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट. ओके, उन कंक्रीट डॉक्ट्रिन क्या बताए. जैसे यू बिलीव, हाँ, हमारे जैसे 10 हमारे थियोलॉजिकल स्ट्रीम में क्या पढ़ाया जाता है? देयर आर स्ट्रीम्स. ओके, थियोलॉजी में, थियोलॉजी एक ऐसा स्ट्रीम है, उसमें आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स देयर. रिलीजन है, हिस्ट्री है, देन मिशन है, देन सोशियोलॉजी है,
जियोग्राफी अलग अलग स्ट्रीम है, बट थियोलॉजिकल स्टडी में एक ब्यूटी है, यीशु मसीह या परमेश्वर या पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत या शैतान या लेसे चर्च या पाप या ये जो स्टडी कंक्रीटली हम अंडरस्टैंडिंग करते, कोई भी पैसेज लेते हैं हमारा बाइबल स्टडी में उसको जोड़ देते हैं, उस मेथड को कहते हैं थियोलॉजिकल स्टडी। डॉक्ट्रिनली यू आर ट्राइंग टू एग्जामिन in the topic which appear in any given text or book of the Bible. That is called theological study. Okay. Now next we'll get into topical study. अलग अलग टॉपिक लेके पढ़ना है। बाइबल में अनेक सारे टॉपिक, विश्वास है, प्रेम है, आनंद है। लेट्स से आजकल के जो प्रोमिनेंट टॉपिक, व्हाट इज दैट? कोविड-19, कोरोना के बारे में बाइबल में लिखा है। इज देयर एनी टॉपिक रिलेटेड टू कोरोना? कैन यू टेल मी? यस, बट नॉट कोरोना। नो कोविड-19 इज रिटन इन द बाइबल। लेकिन क्या लिखा है? प्लेग, महामारी परमेश्वर ने भेजा कहा मिस्र में। देन अकाल, फेमाइन, देन वी सी लेप्रोसी। देयर आर डिफरेंट वे, बट दैट इज सिमिलर टू COVID-19. So what I am to say, कोई भी topic, whatever the topic you are taking to study, you are trying to understand the passage in a topical way. For example, hospitality, stewardship, Christian marriage, yeah, love, or like say divorce, or let's say healing, yeah, faith, any topic you take. Or holiness, or let's say young life, how we should live. Any topic you concentrate. कोई भी वचन का भाग लेके आप जो अध्ययन करते टॉपिक पर, उसको कहते हैं टॉपिकल स्टडी। तो उस टॉपिक में फॉर एग्जांपल आप विश्वास के बारे में बात करते हैं, एक पैसेज लिया विश्वास के बारे में, और लेट्स से लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। John chapter number 3 verse 16, what it say? For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believe should not perish but shall have eternal life. आपने पढ़ा है। वो वचन के भाग को लेके अलग अलग टॉपिक बना सकते हैं। क्या टॉपिक बनाएंगे आप? परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड। आप बना सकते हैं क्या? फेथ, दोज हु डू नॉट बिलीव दे शैल पेरिश, वो चीज है। देन व्हाट you can talk about son of God, परमेश्वर के पुत्र के बारे में बोल सकते हैं। Then eternal life. So one verse you can have multiple topics. So that is what we call topical study. So let's get into other thing. Okay, so we have variety of study. My topic, my subject will be saturation Bible study, but I am introducing you different types. There are 6 I introduce. Next, get into chronological study. Chronological study में chronologically you are trying to understand in the passage how things happen. Systematically you are trying to understand क्या हो गया वचन के भाग में, वचन में कैसे सिस्टमेटिकली हुआ। जैसे बाइबल आप पढ़ रहे हैं, व्हाट यू सी, गॉड क्रिएटेड एंड यू सी डिफरेंट नेशन के, देन पैट्रियर्क्स मतलब अब्राहम, आइसक, जेकब, जोसेफ आए, उसके बाद 12 गोत्र आए, इस्राएल आए, उसके बाद याजक लोग, उसके बाद न्यायी लोग, उसके बाद राजा लोग, उसके बाद भविष्यवक्ता, उसके बाद उद्धारक आए हमारा यीशु मसीह, उसके बाद अपोस्तल, प्रेरित लोग आए, चर्च बन गए। So that's what the sequence you see. In the same way, any passage you take in the Bible, any verse you take, you need to, or any event or parable, तो क्या करना है आपको? क्रोनोलॉजिकल स्टडी में क्रोनोलॉजिकली कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे घटना हुआ, और उसको वर्णन करके जो आप स्टडी करते हैं, उसको ध्यान केंद्रित करके जो स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी। ओके, क्रोनोलॉजी मतलब क्रॉनिकल्स है, क्रोनोलॉजी सिस्टमेटिक। ओके, ये रिकॉर्ड नहीं है। क्रोनोलॉजिकल मतलब सिस्टमेटिकली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गिवन वर्स और पैसेज इन द बाइबल। नेक्स्ट वन इज बुक स्टडी। वी हैव हाउ मेनी बुक्स इन द बाइबल? 66। एक एक बुक लेके भी आप पढ़ सकता है, वो भी एक बाइबल स्टडी मेथड हो पाएगा। बुक स्टडी, we have Genesis to Revelation, there are 66 books. Old Testament we have 39 books. Each book you can study. By the way, book study is interesting one.
कोई भी बुक आप अध्ययन करेंगे तो उसको पूरा आप समझ पाएंगे। पता नहीं आप लोगों में कितने लोग बाइबल अब तक एक एक बुक पढ़ाई किया, एक एक पैसेज लेके पढ़ाई किया और अलग अलग सेक्शन में पढ़ाई किया, वो मैं नहीं जानता हूँ। बट मेरी ओर से ये एनकरेज है, इज टेक बुक, दैट इज वेरी गुड। Let's say today you study Matthew, so you until and unless you finish Matthew, don't go to the Mark. आप मलाकी पढ़ रहे हैं तो मलाकी ही पढ़ना है, यदि जेनेसिस पढ़ रहा है तो जेनेसिस, उसको बुक स्टडी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ पाएंगे। आगे पीछे आप जाएंगे तो फिर वो बुक को आप पूरा पूरा समझ लेंगे। सो बुक स्टडी, यू आर स्टडिंग ए बुक वर्स बाय वर्स और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लुक फॉर द पैरेलल कंट्रास्ट थिंग। क्या पैरेलल है? फॉर एग्जांपल मैथ्यू और लूक, ये इसको कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल। उसमें क्या देखते हैं? मत्ती ने जो लिखा है मार्क में भी, लूक में भी देखते हैं, जॉन में थोड़ा अलग है, तो वो पैरेलल है, ये गॉस्पेल में है। इवन पुराने नियम में जो बात है इन द ओल्ड टेस्टामेंट, व्हाट इज दिस रिटन, यू सी इन द न्यू टेस्टामेंट, बिकॉज़ सर्टेन पैरेलल थिंग यू सी। So we should study the Bible book and understand parallel in other passages. What are the contrast? Okay. For example, विश्वास के बारे में लिखा गया और एक बुक में, और उसका कंट्रास्ट क्या है, जो विश्वास नहीं करते और विश्वासी लोगों का हाल क्या होता है, and other thing into richer and deeper insight. So what are the things get involved in that parallel and contrast, and you try to understand in the book. Okay, next one is word study. Word study, एक ही वर्ड लेके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप हीलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हीलिंग, वो एक पैसेज या वर्स में हीलिंग किसने दिया, कब दिया, कहाँ से हीलिंग आता है, What does it mean? हीलिंग किस बात के लिए? यीशु मसीह ने कितने भी हीलिंग किया है, किस बात के लिए किया? Just to glorify God. So when you are taking a passage or verse or chapter or book, when you are talking about word study, you are focusing the only one word, not different words in the book, whether it is in the Bible or book or chapter. Only one word. So look up the word in its original language for greater understanding. आपने जैसे हमारे ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म में केरूसो कहाँ लिखा गया, कहाँ लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इसका विशेषता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, देन यू गो ऑन। जैसे मैं बता रहा था कोविड-19 तो बाइबल में है नहीं, कोरोना तो है नहीं, प्लेग है। प्लेग से कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया? क्यों प्लेग? कब प्लेग आया? ये महामारी कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने भेजा, और इसका हाल कैसे? सो वर्ड स्टडी. So that is also one of the way that you can study the Bible. My point is saturation Bible study. What is saturation Bible study? Saturation Bible study. This is one of the process, a simple process that you get into the word. आप परमेश्वर का वचन के अंदर जा रहे हैं, उसमें फिर क्या हो रहा है, पूरा डूबे जा रहे हैं, और जब आप वहां से वो वचन जब आप मनन करते हैं तो आपके जीवन में वो वचन लागू करते हैं और ऐसे ही दिखाई पड़ता है, उसको कहते हैं सैचुरेशन बाइबल स्टडी. द बेस्ट एग्जांपल इज जस्ट लाइक टेक ए बकेट ऑफ वाटर. एक बाल्टी पानी लेके एक स्पंज डुबाना है तो क्या निकलता है? पानी है, और इसको जब आप ऐसे दबाएंगे तो पानी ही निकलता है. ऐसे परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे जब, तो वो पर्सन ऑफ क्राइस्ट जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग सोचा है, उसको मनन किया अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति, तो वही है, वो कहा हुआ वचन वो दिखाई पड़ता है. जहां कहीं भी वो जाते हैं उसका घोषणा करते हैं, उसके बारे में कहता है, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सैचुरेशन. तो सैचुरेशन बाइबल स्टडी is one of the method of Bible study which is very effective for Bible student or believer. We have so many Bible study method. I already said there are 10 here I am coming. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है? The target is Jesus only. हमारा टारगेट यीशु मसीह को, परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना, और कुछ नहीं. So our main target is to experience and know Jesus Christ.
I don't to understand. So today I told you the basis to saturation Bible study and quiet time, then excuse के बारे में, then technique के बारे में, time and training के बारे में. So many things we should have in order to understand Bible. तो बाइबल को हम किस टाइप पढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया, अलग अलग 10 टाइप्स बताए, उसमें से हम सैचुरेशन बाइबल स्टडी पढ़ेंगे in the coming days. I don't know whether you are able to understand or not. The Bible study is very important for a believer, for a Bible student, for a servant of God, for a preacher, a teacher. हम तो ये नहीं बोलते नहीं पवित्र आत्मा ने बोला, कई पास्टर लोग वो पुराने जमाने में जैसे बाइबल लिए सुबह सुबह और बस मुंह धोए, उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं तो बाइबल खोला, ऐसे दिखाई दिया जो पैसेज वही पढ़ा है वही बोला है, ऐसे नहीं. व्हाट एक्चुअली, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द बैकग्राउंड and how we should do. So there are different way of doing Bible study, but saturation Bible study will look into it in the coming days. आने वाले समय में इस बात को देखेंगे, तब जाकर कह पाएंगे कि हम परमेश्वर का वचन को मनन कर रहे हैं, किस टाइप करना है. Okay, so our main aim to experience Jesus, that is living word. जैसे मैंने कहा, ये जो व्यवस्था यीशु को दिया गया, परमेश्वर ने क्या कहा, दिन रात क्या करना है, मनन करना है. और वो स्क्रिप्चर आज हमारे हाथ में है, वो लिखित वचन, और वो लिखित वचन यीशु मसीह में देहधारी हुआ, और वो वचन को हम जब मनन करते हैं तो केवल वो लिखित वचन नहीं है, एक लिविंग वर्ड ऑफ गॉड. सो दिस लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इट हैज टू स्पीक टू अस एंड वी शुड ओपन आवर हार्ट एंड माइंड टू अंडरस्टैंड इट वेल and experience what word of God speak to us in our Bible study. And same thing when we experience, हम जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, परमेश्वर जो बोलता है उसको एक्सपीरियंस, तब जाकर हम कहेंगे वो इफेक्टिव है. why we are not effective? हम लोग क्यों प्रभावशाली नहीं बनते पता है? क्योंकि परमेश्वर के आवाज को हम सुनते नहीं, परमेश्वर को हम अनुभव करने के लिए कोशिश नहीं करते. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या मनन करते, जब कभी हमें जरूरत है तब ही पढ़ते, then only we study. That's why we are not able to experience Jesus personally, even in our Bibles. We are not able to bring a good message, deliver the word of God in rightly dividing the word. We don't have that confidence. Why? Because we don't apply our brain. God has already given us the knowledge and wisdom, and we need to utilize it for His glory. तो आने वाले समय में आप लोग क्या करना है कि परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना. सो सैचुरेशन बाइबल स्टडी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम टुमारो.